Good afternoon, everyone. So now this is the next lecture or a continuation lecture for adaptations required by the flowers or plants for pollination. In the previous lecture, we studied adaptations for, if you remember, abiotic agents. Okay. Now today we will be completing adaptations for pollination for biotic agents. Okay. Now we all know that when we talk about biotic agents, we are basically talking about zoophily, that is animal pollination. Okay. And in animal pollination, the first and the most important animal which I can say are nothing but insects. Okay. And whenever insects are performing pollination, we call it as entomophily. And the best example of entomophilous flowers are rose, jasmine, then like the flowers which are having quite fragrance, or I can say even nectar. Okay, right. So these are the plants or flowers which are pollinated with the help of insects. Now let us see what are the modifications or adaptations done by the flower. The first and the foremost adaptation, as you can read, is that the flowers are quite large. Okay, so that the insect can enter into the flower for obtaining nectar. Okay. Next is the flowers are conspicuous. Now, when I use the word conspicuous, they are quite notable, or I can say that they are brightly colored. Like it can be red color, it can be yellow color, it can be blue color. So the flowers are quite large and they are conspicuous. Okay. And now the most important, whenever we talk about insect pollinated flowers, you need to remember they are with fragrance. Okay, right, quite sweet fragrance, or I can say pleasant odor, right? And along with that, there is a sugary fluid which we call it as nectar. Okay, kids, right? Now, there is something again important adaptation done by a particular flower or a plant, that is the stigma is hairy and sticky. Now let us understand what exactly I mean by that. If you can if you can actually get hold of hibiscus flower, okay, the stigma of hibiscus flower is quite sticky. Another thing, if you observe it under a normal lens also, you can make out that the stigma is flat like this, right? And on that you can see small hair like structures. Now listen, these hair-like structures will allow easy trapping of pollen grains. Okay, therefore the stigma is quite hairy, and of course it is sticky because of presence of mucilage. Okay, kids, right? Next, if you observe pollen grains again of hibiscus, now why I am insisting on hibiscus is that hibiscus is a very common flower. Okay, right? हम लोग उसको जास्वंदी का फूल बोलते हैं. ठीक है, राइट? तो ये फूल अगर आपको मिलेगा, ये फ्लावर अगर आपको मिलेगा, तो उसके पोलन ग्रेन्स आप देखेंगे तो वो काफी एकदम येलो कलर के होते हैं. और अगर हम हर एक पोलन ग्रेन को देखेंगे तो उसका जो एग्जाइन होता है वो स्पाइनी होता है. ओके, so remember, spiny exine is again an adaptation done by a flower for ensuring entomophily. Okay, right? And this is also covered by a yellow chemical. Now, unfortunately, we don't have any yellow color marker over here. Okay, but remember that there is a sticky fluid surrounding this pollen grain. Okay, and we call it as pollen kit. I repeat, we call it as pollen kit, the mucilaginous covering for a pollen grain. Okay, now we have observed that there are certain flowers who have developed a special mechanism so that insect can visit them and can actually collect the pollen grain when they come to collect the nectar. जरा मेरी बात ध्यान से सुनना. हमने ऐसे डिस्कवर किया है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो पोलन ग्रेन को जब भी कलेक्ट करने आते हैं, ओके, और रादर मैं उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी, जब भी वो नेक्टर को कलेक्ट करने आते हैं तो वो पोलन ग्रेन को भी अपने साथ लेके जाएंगे. तो मैं ऐसे बोलूं क्या, नेक्टर जो है ये एक उनको रिवॉर्ड दिया गया है फ्लावर से, ताकि वो पॉलिनेशन करने में फ्लावर की मदद करे. ओके, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. When they come to collect the nectar, see, the insect is not interested in
पोलन ग्रेन. ओके, द इंसेक्ट इज इंटरेस्टेड इन नेक्टर. तो नेक्टर उनका एक रिवॉर्ड है, और वो रिवॉर्ड पाने के लिए वो इंसेक्ट जब ये आता है तो डेफिनेटली पोलन ग्रेन को भी लेके जाता है. तो फ्लावर का भी काम हो गया, और मैं ऐसे बोलूं क्या, तुम्हारे जो इंसेक्ट है उसका भी काम हो गया. ओके, हम एक मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि ये नीट पर्सपेक्टिव नहीं है ना ही. ओके राइट, ये हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है. ओके, बट वो लोगों ने सिर्फ एक लाइन मेंशन किया है, और वो लाइन को एक्सप्लेन करना एज अ टीचर मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है. ओके, एंड दे हैव मेंशन्ड अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म. So let us understand this wonderful mechanism developed by a particular flower called as salvia. Okay, abhi before we start with this liver mechanism or turnpike mechanism, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. ओके राइट, अभी सबसे पहले साल्विया जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन बताता है, तो ये पहला पॉइंट हो गया. ओके, Now when I say cross pollination, definitely मैं ऐसे बोलूंगा कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन होगा और दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा होगा. Let us consider, अगर ये एक फ्लावर है जिसका मैं पोलन ग्रेन बोल रहा हूं, तो ये दूसरा फ्लावर होगा जिसका मैं स्टिग्मा इस्तेमाल करूंगा. Okay, so two flowers are involved. I am using the word cross pollination. Is this clear? Right. अब सुनिए ध्यान से. Now for understanding this liver mechanism, okay, we also need to understand one more basic. तो पहला था हमारा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन बताता है. ओके, दूसरा ये प्रोटैंड्रस कंडीशन बताता है. ओके, अभी प्रोटैंड्रस का मतलब है, प्रो का मतलब है फर्स्ट, ओके, और एंड्रस का मतलब है मेल. तो हमने ऐसे डिस्कवर किया कि इस पर्टिकुलर फ्लावर में जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर होता है, और जो गाइनोशियम है वो अभी भी इमेच्योर होता है. आई रिपीट, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट अगेन. व्हेन आई से प्रोटैंड्रस, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट और एंड्रस का मतलब है एंड्रोशियम और मेल. सो दिस इज अ कंडीशन इन विच द मेल इज मैच्योरिंग फर्स्ट while the female is still in immature condition. Okay, so now let us take condition number 1, or I can say case 1. Now let us consider हमारे पास एक प्लांट है साल्विया का जिसमें ये फ्लावर है. ओके, अभी ये फ्लावर में ये जो आपको दिखता है ये नेक्टरीफेरस ग्लैंड है, यानी इधर पे नेक्टर है सबसे अंदर. राइट, दूसरा इसका जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम का मतलब है फीमेल, ये अभी भी इमेच्योर है, तो मैंने यहां पे लिखा है इमेच्योर स्टिग्मा, यानी अभी भी फीमेल is not ready for receiving the pollen grains. Is it okay? The stigma is still in baby condition or immature condition. Okay, now let us come to androecium. अभी इसका androecium जो है उसका, if you remember filament, okay, तो ये जो फिलामेंट है ये बाइफरकेटेड है. ओके, बाइफरकेटेड है. हम लोगों ने थोड़ा सा अगर इसको और डिटेल में पढ़ा तो एक्चुअली इसका कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव इज नथिंग बट इज अ स्टेराइल टिश्यू. ओके, वो बाइफरकेटेड है या बाइवेरिएट है. ओके, बाइवेरिएट का मतलब है ऐसे दो जगह पे वो ब्रांचिंग दे रहा है. ओके, अभी ब्रांचिंग की वजह से उसके एंथर लोब्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए. ओके, एक फर्टाइल लोब. फर्टाइल लोब का मतलब है ये पोलन ग्रेन बनाएगा. आई रिपीट, ये पोलन ग्रेन बनाएगा. ओके, और स्टेराइल लोब का मतलब है ये जो पार्ट है एंथर का ये नहीं बनाएगा पोलन ग्रेन. इज इट ओके? सो दिस इज पोलन ग्रेन फॉर्मेशन वाला लोब and this is not involved in formation of pollen grain, or we call it as sterile lobe. Is it okay? Now please don't ask me sir क्यों नहीं बनाता है. Okay, क्योंकि उसके पास वो जीन्स नहीं है जो पोलन ग्रेन को बनाने में मदद करेंगे. Is it okay? और जैसे मैंने बोला ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो इंसेक्ट को मदद करता है फॉर कैरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. Is it okay? Right. और है ना बच्चों, और एक बात प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू यूज कॉमन सेंस ऑल्सो. I know it is quite uncommon, but then still, okay, right? सुनिए,
तो अभी इसका स्टिग्मा इमेच्योर है, राइट, और इसका एंड्रोशियम मेच्योर है बिकॉज इट इज शोइंग प्रोटैंड्रस कंडीशन. इज इट ओके? राइट. अभी सुनिए ध्यान से. अभी हम लोगों ने ऐसे डिस्कवर किया कि इसका ये जो करोला है, ये जो रेड वाला पार्ट मैंने यहां पे बताया है, दिस इज नथिंग बट कोरोला. नाउ यू नो करोला का जो मेंबर है उसको हम पेटल बोलते हैं. ओके तो इसका जो पेटल है वो ऐसे है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेबिएट पेटल. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज बाइलेबिएट पेटल. लैबिया का बेसिकली मतलब है लिप्स. ओके तो आपको दो लिप्स के जैसा ये चीज दिखता है, ठीक है ना. और ये जो नीचे वाला लिप है या ये जो नीचे वाला पार्ट है वो लैंडिंग स्टेज है. लैंडिंग का मतलब है यहां पे वो जो कीड़ा है वो आके लैंड करेगा. इज इट ओके? सो दिस पर्टिकुलर लोअर लिप or the lower part of the corolla is the landing stage for the bee or I can say insect. ये दिमाग में गया? सुपर. अब सुनो, अभी हम लोगों ने ऐसे डिस्कवर किया कि जब भी वो बी अंदर आती है या अंदर आता है जो भी है, राइट, ओके, इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल, राइट. सो व्हेन द बी लैंड्स ऑन द लोअर लिप, ओके, इट एक्चुअली पुशेस द स्टेराइल लोब. जरा प्लीज अच्छे से सुनना और समझना. जब भी वो हनी बी या कोई भी बी, लेट अस कंसीडर, वो जब भी अंदर आती है तो वो यहां पे लैंड होती है. और जब भी वो लैंड करती है तो ये जो स्टेराइल लोब है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है. और जब भी वो इस तरफ शिफ्ट होता है ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ आ जाता है. आई रिपीट, सी, इसको जब भी मैं धक्का मारता हूं तो वो नीचे चला जाएगा. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्न पाइप मैकेनिज्म. अब ध्यान से देखिए, आई एम यूजिंग द वर्ड टर्न पाइप मैकेनिज्म. तो उसने लोअर स्टेराइल लोब को धक्का दिया. ओके जैसे ही धक्का दिया ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये जो हनी बी है या जो भी बी है उसके जो विंग्स है उसके ऊपर टच करेगा. और जैसे ही वो टच करेगा सारे पोलन ग्रेन्स उसके बॉडी के ऊपर या विंग्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे. इज इट ओके? आप थोड़ा सा याद करो, आज हम कोरोना के एरा में हैं और हमारे सबके जो घर है उसके बाहर एक डिस्पेंसर का स्टैंड लगा है जिसमें आप फुट ऐसे नीचे दबाते हो तो ऊपर से, ओके राइट, वो जो लिक्विड है वो बाहर आता है. क्योंकि जब भी आप फुट पेडल पुश करते हो तो देयर इज अ पर्टिकुलर, आई कैन से, मैकेनिज्म जिससे वो डिस्पेंसर का नोजल प्रेस होता है. तो वैसे ही कुछ इमेजिन करना कि जब भी मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा. सेम लाइक अवर डिस्पेंसर ऑफ दैट व्हाट यू कॉल इट, डिसइंफेक्टेंट. ओके जहां पे आप टच नहीं करते हो, आप पैर से वो नीचे वाला पार्ट दबाते हो, राइट, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे आता है और आपकी बॉटल को प्रेस करता है. जब भी आप पैर निकालते हो तो वापस वो नॉर्मल में आ जाता है. तो वैसे ही इंसेक्ट जब भी आएगा वो इसको प्रेस करेगा. ऊपर वाला फर्टाइल लोब का मतलब जिसमें पोलन ग्रेन्स है, वो उस बॉडी के ऊपर टैप होगा. और जैसे ही वो टैप होगा पोलन ग्रेन्स उस पर्टिकुलर हनी बी या जो भी इंसेक्ट है उसके बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे. इज इट ओके? सो दिस इज केस 1 और कंडीशन 1 जिसमें हनी बी ने या कोई भी इंसेक्ट ने पोलन ग्रेन को कैरी किया फ्रॉम फ्लावर नंबर 1. सो लेट अस कंसीडर दिस इज फ्लावर नंबर 1. इज इट ओके? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मैकेनिज्म और आई कैन से कंडीशन नंबर 2. सो जब ये हनी बी, ओके, पोलन ग्रेन को लेके फ्लावर नंबर 1 से बाहर निकली, वो डेफिनेटली पहुंची अभी फ्लावर नंबर 2 के पास. ओके अभी फ्लावर नंबर 2 शायद उसी प्लांट के ऊपर होगा या तो कोई दूसरे प्लांट के ऊपर होगा. हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर हमको ये जानने में इंटरेस्ट है कि वो फ्लावर नंबर 2 पे क्यों विजिट करेगी. वो ऑफ कोर्स विजिट करेगी फॉर टेकिंग मोर नेक्टर. ओके तो ये हनी बी, लेट अस मान के चलते हैं कि वो फ्लावर नंबर 1 से उड़ी है और वो फ्लावर नंबर 2 पे पहुंच रही है. अभी ऐसा मान के चलते हैं कि वो फ्लावर नंबर 2 जो है वो ऐसा फ्लावर है जिसका एंथर ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है. बिकॉज आई टोल्ड यू द कंडीशन इज प्रोट्रैंड्रस. ओके तो इसका एंथर ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है और इसका स्टिग्मा अभी मैच्योर हुआ है.
Okay, so now the female is matured. So can I now say that the male is already matured? उसके pollen grain को ही लेके गया है, right? Okay, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, किसमें? pollen grain में, पर मेरे को इंटरेस्ट है उसके matured stigma में. Okay, तो let us consider कि मेरे पास flower number 2 है जिसका स्टिग्मा अभी मेच्योर है. इज इट ओके? राइट. तो वो हनी बी फ्लावर नंबर 1 से उड़ी है और फ्लावर नंबर 2 के लैंडिंग स्टेज यानी जो करोला है उसके ऊपर आ गई है. अभी इसका स्टिग्मा मेच्योर हो चुका है. नाउ मेच्योर का मतलब है वो साइज में भी बढ़ेगा और वो रिसेप्टिव बनेगा फॉर एक्सेप्टिंग द पोलन ग्रेन्स. इज इट ओके? राइट. तो अगर आप इस फ्लावर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है विदरिंग एंथर. विदरिंग का मतलब है ये एंथर अभी ऑलरेडी मेच्योर्ड है, इसके पोलन ग्रेन्स ऑलरेडी निकल चुके हैं. इज इट ओके? राइट. तो ये जैसे ही हनी बी इस पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर लैंड करेगी उसके जो विंग्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी पोलन ग्रेन थे फ्लावर नंबर 1 के, ओके, वो इसके स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा और क्रॉस पॉलिनेशन अचीव होगा. ओके, सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज टर्न पाइप मैकेनिज्म और लिवर मैकेनिज्म. व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिवर? क्योंकि जब भी मैं एक को दबाता हूं तो दूसरा नीचे आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिवर मैकेनिज्म. इज इट ओके? आई होप ये समझ में आया. 1 से उड़ी है पोलन ग्रेन को लेके, 2 के पास आ रही है. दैट पर्टिकुलर हनी बी इज लैंडिंग on that bilabiate corolla. The stigma is now mature. It will immediately come in contact with the pollen grains of the flower number 1, which is carried by honeybee. Is it okay? So this is an adaptation done by a flower, right? So that the insects can easily transfer pollen grain from flower number 1 to flower number 2. Okay? And the condition which helps is protandrous condition, where here the male is already matured and the female is now matured after some time. Is it okay? So this is how adaptation is done by salvia, so that insects are definitely helping in pollination. Okay. So what we learned was definitely for the insect, and now we will be talking about bird adaptations done by flowers or plants for ornithophilia or bird pollination. Okay, right. Now I told you that ornithos are nothing but birds, right? And phillies over here pollination. Now kids, you need to remember that it is not necessary that all the birds are going to pollinate the flowers. Very few birds like sunbirds, hummingbirds, crow, bulbul. Okay, right? Now these are the very small birds. Now of course you may say कि like अरे sir crow तो काफी बड़ा है, ठीक है, but वो कुछ flowers को pollinate करता है. बट अगर मैं बात करूंगा सनबर्ड की या हमिंग बर्ड की, तो ये काफी उनकी बॉडी छोटी होती है और उनके जो बीक्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं. ओके, तो इसके लिए सारे बर्ड्स पॉलिनेट नहीं करते हैं फ्लावर्स को, कुछ सिलेक्टेड बर्ड्स हैं जो पॉलिनेट करेंगे फ्लावर्स को. अभी लेट अस सी हाउ द फ्लावर्स आर अडेप्टेड फॉर ऑर्निथोफिली. ओके, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके फ्लावर्स भी ब्राइट कलर के होते हैं. ज्यादा करके ये ब्लू कलर के होते हैं, या तो येलो कलर के होते हैं, या तो रेड कलर के होते हैं. ओके, राइट. और इनका जो करोला होता है वो फ्लैशी होता है. इट इज नॉट आई कैन से डेलिकेट, थोड़ा सा थिक होता है और फ्लैशी होता है. बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब भी वो बर्ड उस पर्टिकुलर फ्लावर को विजिट करेगा तो वो डेफिनेटली जो पेटल्स है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका पेटल टूट गया या फट गया, उससे उसका फ्लावर का नुकसान होगा. इसके लिए इसका करोला जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और फ्लैशी होता है, ये याद रखना. राइट. दूसरा, हमने ऐसे देखा है कि ये जो फ्लावर्स हैं इनमें नेक्टर होता है भर भर के. ओके, राइट. और ये नेक्टर को ही पीने के लिए ये बर्ड्स उस फ्लावर को विजिट करते हैं. इज इट ओके? राइट. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनमें नेक्टर होगा, इनमें कलर होगा, पर फ्रेग्रेंस नहीं होगा. उसका कारण है जो बर्ड्स होते हैं उनका सेंस फ्रेग्रेंस का एकदम पुअर होता है. दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी उनको समझ में ही नहीं आता, उनको स्मेल का जो सेंसेशन है वो हो ही नहीं. राइट. ओके, सो रिमेंबर दैट. इसके लिए ऑफ कोर्स वो प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा इन प्रोड्यूसिंग फ्रेग्रेंस. इज इट ओके? राइट. इसके भी पोलन ग्रेन स्पाइनी होते हैं और स्टिकी होते हैं.
और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो कोरोला है वो ट्यूब्यूलर होता है। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये कोरोला ट्यूब के जैसा है, राइट? सो वी कॉल इट एज ट्यूब्यूलर कोरोला, ओके। और उसके बेस में नेक्टर ग्लैंड होगी। नाउ द बेस्ट, और ये इसको फनल शेप कोरोला भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आप लोगों ने बिग्नोनिया 11th में भी पढ़ा था, राइट? यहां पे भी अभी पढ़ेंगे। बिग्नोनिया इज पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ birds, so we can say that it is ornithophily. Then another example is callistemon, another example is your butea and bombax, silk cotton. Is it okay? So this is about ornithophily or bird pollination, okay? Right, now let us start with the next type of pollination, which is called as chiropterophily or bat pollination. Okay kids, right? So now when we talk about chiropterophily, okay, you all know that chiropterophily is nothing but pollination done with the help of bats, flying mammals, or rather, to be very specific, nocturnal flying mammals. And we have seen that these mammals have the ability to transport the pollen grains, okay, to a range of around 30 kilometers, because of course they are flying mammals, right? So they can easily fly. और हमने pollination जब भी discover, rather थोड़ा सा रिसर्च किया बाय बैट्स, तो देखा कि 30-30 किलोमीटर तक लंबे ये लोगों ने पोलन ग्रेन्स कैरी किए हैं। तो काफी बड़े पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं हमारे बैट्स। और आज मालूम है आप लोगों की कि ऐसा न्यूज है कि शायद जो कोरोना वायरस है वो नेचुरल नहीं है, वो बनाया गया है और उसके अंदर बैट्स के भी जीन्स है, ओके? ऐसा बोलते हैं, सी देयर इज नो कंफर्म न्यूज, बट एनीवे, जस्ट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, right? So these are nocturnal flying mammals who perform pollination, okay? So now let us see what are the adaptations done by this plants, okay, who are pollinated with the help of bats. Number one, now you know that bats are nocturnal mammals, so definitely ये जो flowers होंगे ये night blooming होंगे, यानी वो लोग रात को ही खिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि ये जो flowers है ये nocturnal है, okay? दूसरा, हमने ऐसे डिस्कवर किया कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफी बड़े होते हैं साइज में, राइट? और साइज में बड़े होने का कारण है कि ये जो बैट्स है ये इनको क्लिंग करेंगे। क्लिंग का मतलब है लटकना, पकड़ के लटकना, राइट? ओके, तो दे कैन क्लिंग टू द फ्लावर्स इजीली, देयरफॉर राइट द फ्लावर्स आर क्वाइट लार्ज एंड दे आर हैविंग थिक फ्लोरल पार्ट्स, ओके? नाइस। नाउ नॉर्मली दे डोंट हैव स्वीट फ्रेग्रेंस बट दे हैव स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग ओडर, यानी यहां पे खुशबू नहीं है, यहां पे बदबू है, ओके? अगर कोई भी फ्रूट को अगर आप बहुत दिनों तक रखेंगे तो वो फर्मेंटेशन चालू करता है। या जब भी हमारे घर में इडली या डोसा का बैटर बनता है तो देयर इज अ पर्टिकुलर फर्मेंटिंग ओडर। तो ये जो फ्लावर्स है उनमें ऐसी बदबू आती है। देखिए हमारे लिए वो बदबू है पर बैट्स के लिए वो खुशबू है। I hope you are understanding the difference, right? Okay. So this particular fermenting odor will attract the bats for performing pollination. Okay. फिर हम लोगों ने और एक चीज देखी है कि इस फ्लावर के अंदर भर भर के नेक्टर होता है, तभी तो वो बैट्स उधर अट्रैक्ट होते हैं। और एक बात, इनमें बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स हमने डिस्कवर किए हैं। रादर हम लोगों ने ऐसे देखा है कि कुछ फ्लावर्स जो है वो 1500 से लेके 2000 स्टेमेंस बनाते हैं। See now try to understand this. If the number of stamens are more, can I say the number of pollen grains would also be abundant? So they produce abundant amount of pollen grains. Is it okay? Right. So इतना सारा ये flower करता है for pollination with the help of bats. Okay. And the best example I can share with you is a plant called as Skygala pinnata, also called as sausage plant. Adinsonia anthocephalus, okay, right? कदम का पेड़ हम लोग इसको बोलते हैं। तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट करते हैं बैट्स, okay, right? So this was chiropterophily. The last is malacophily. Malaco का मतलब है snails. हम लोग उसको मराठी में गोगल गाय बोलते हैं, छोटी सी होती है, राइट? ओके। और ये स्नेल्स होते हैं, ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। उसका एग्जांपल आई कैन गिव यू इज a plant called as arum, A-R-U-M, right? Arum के pollen grains are carried with the help of snails and we call it as malacophily.
right? So these were the modifications done by the plants or flowers to ensure, number one, entomophily, number two, ornithophily, number three, chiroterophily, number four, malacophily. Is it okay? There is one more, ophiophily, but then there are no modifications, that is by chance done by the snake. Okay, kids? Right. So these were the adaptations for the biotic agents. Yes, in the previous lecture, we studied modification done for abiotic agents. Today, we studied modifications done for biotic agents. Okay. Now, as I always request you, please refer to textbooks. Number one, NCERT, and number two, your government textbook. Okay, kids? Right. Chalo. Bye.